we heard brothers saying that how we were before we came to Christ. हम लोगों ने आज सुना कि कैसे हम लोग थे प्रभु में आने के पहले। We were children of the devil, हम लोग शैतान के बच्चे थे and the devil was always a murderer. और शैतान हम पहले से खूनी था। And we also were given to all sorts of foul, bad tempers, and we would have murdered a lot of people had it not the circumstances been there. Had not been there? We would have murdered a lot of people had we been in the proper circumstance. तो हम लोग भी कई लोगों का खून कर देते थे अगर हम लोग वो परिस्थिति में रहते तो। And we heard about this incident of being murdered. But once the Lord came, because we were children of the devil. क्यों ऐसा था? क्योंकि हम लोग शैतान के बच्चे थे। We can also sympathize with this man who killed that other man. इसलिए हम लोग ये व्यक्ति के ऊपर भी रहम कर सकते हैं जिसने दूसरे व्यक्ति का गला काटा The था। spirit of darkness overcomes a person, and then when we give it to it more and more, then we become murderers. तो जो अंधकार की आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आती है और जितना वो उसके और समर्पण होते जाता है वो फिर कोई भी पाप कर सकता है। Bible says if you have anger in your heart, you are like a murderer. बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे मन में गुस्सा है तो तुम्हें खूनी के समान हो। You can kill anybody. तुम किसका भी खून कर सकते हो। The Bible says a murderer is a fool. बाइबल में लिखा है कि एक खूनी बेवकूफ आदमी है। This man, if he had in some sense, he knows if he murders this person, he also going to get killed. वो व्यक्ति अगर थोड़ा भी उसमें समझ रहता वो याद रखता था कि अगर मैं उसको मारूंगा एक दिन कोई मुझे ही मारेगा। So the person who gets angry is a fool. तो इसलिए जो व्यक्ति गुस्से में आता है वो बेवकूफ होता If है। you get angry with your wife or angry with anybody, office people and all, we must say we are fools. अगर तुम अपने पति पत्नी या ऑफिस में किसी के ऊपर भी तुम गुस्सा करते हो तो तुम बेवकूफ हो। And the Lord is there even after we become believers to remove all this foolishness from our own life. इसलिए प्रभु चाहता है कि एक बार हम लोग विश्वासी बने हम लोग ये सारी बेवकूफी हमसे खुद से निकाल दें। Because Jesus Christ is our leader, He is the one who, the Holy Spirit helps us to overcome all these spirits of anger and all this evil that is there in our own life. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के चेले हैं और इसलिए पवित्र आत्मा फिर मदद करती है हमारा ये सब गुस्सा निकालने के लिए। But then we have our own will to do what we want to do. लेकिन फिर भी हमारे पास एक इच्छा होता है जिसके अनुसार हम लोग जी सकते हैं। That is why when we become believers, we still have a flesh. इसलिए इसके बावजूद भी हम लोग विश्वासी बनते हैं हमारे पास एक खुद की इच्छा होती है। God doesn't take away our own will. तो ये इच्छा प्रभु हमसे नहीं छीनता है। He keeps our own will. वो देता है हमें रखने देता So है we can do what we want to do with our own will. ताकि हम लोग वो चीज कर सके जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। That's why there are believers who do worse sins than unbelievers. इसलिए से कई सारे विश्वासी हैं जो ऐसे पाप करते हैं जो अविश्वासी भी नहीं करते। That every sin that unbelievers can do, even a believer can do. तो हर एक पाप जो अविश्वासी लोग कर सकते हैं वो विश्वासी लोग भी कर सकते हैं। Because we have our own self-will. क्योंकि हमारी खुद की इच्छा हमारे पास फिर भी रहती है। And that is why the Holy Spirit has come to give us to overcome our will and to do God's will. इसलिए पवित्र आत्मा आया हमारे जीवन में ताकि हम लोग हमारी इच्छा को त्याग सके और प्रभु की इच्छा कर सके। When we yield our will to the Holy Spirit takes care of us and gives us the power to overcome all the evil that is there in our own lives. अगर हम हमारी इच्छा पवित्र आत्मा को समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें शक्ति देती है प्रभु का इच्छा करने के लिए। And for that we have to say no to our will and yes to God's will. लेकिन उसके लिए हमें हमारी इच्छा की ओर नहीं बोलना पड़ेगा और प्रभु की इच्छा की ओर हाँ बोलना पड़ेगा। Then the Holy Spirit will take control of our lives. तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण लेगा। God doesn't force us to do His will. प्रभु कभी भी हमसे जबरदस्ती नहीं करता उसका इच्छा करने के लिए। He says you have to willingly give. वो बोलता है कि तुम्हें खुद से देना है, समर्पण करना You है। have to give your consent. वो तुम्हें खुद ही अनुमति देना Like है। you go for an operation, the doctor will not operate you unless you give a consent. जब कभी भी हम लोग ऑपरेशन के लिए जाता है कोई भी डॉक्टर तुम पे ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते लिख के। The Holy Spirit will operate upon you if you give your consent. उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी तुम में तभी कार्य करेगी जब तुम उसके अनुमति दोगे। Yes, Lord, I want to be like Jesus. I want to walk in the same way as Jesus walked. हमें बोलना है कि हाँ प्रभु मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना है, उसी के जैसे चलना है। It is painful, but then the Holy Spirit will take care of it. मुश्किल है लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए तैयार There है। are many people who followed Jesus when Jesus was there on this earth. जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो कई लोग थे जो उसका पीछा करते थे। And Jesus told them in Luke chapter 14. और लूक चैप्टर 14 में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, लूक चैप्टर 14 verse 25, 26, 27. वाक्य 25 से 27। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपने पत्नी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। See,
Just great multitudes were following Jesus. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ा भीड़ था जो प्रभु के पीछे जा रहा So था, Jesus was giving such fantastic sermons. क्योंकि प्रभु सब लोग को एकदम अच्छी तरीके से सिखा रहा था। And even Herod wanted to hear him. इतना अच्छा सिखा रहा था कि जो हेरोद राजा था वो भी उसको सुनना चाहता Such था। an evil fellow, but he knew Jesus' words were fantastic words. He wanted to hear it. वो एकदम बुरा व्यक्ति था, लेकिन वो जानता था कि प्रभु यीशु के शब्द बहुत ही अच्छे शब्द थे, इसलिए मुझे भी सुनना है। And he did so many miracles, so many healings. उसने कई सारे चमत्कार किए, कई लोगों को चंगाई दी। So wherever Jesus went, there were lot of people following him. इसलिए जहाँ का भी प्रभु यीशु जाते थे वहाँ पे सब जगह पे भीड़ इकट्ठा हो जाता था। But Jesus knew. He turned around and said, "If you want to follow me इसलिए प्रभु यीशु ने उल्टा मुड़ा और उन सबको बोला, अगर तुम्हें मेरा पीछा करना है, and be my disciple, मेरा चेला बनना है, you have to hate your father, your mother, your children, your own life to follow me. Your brothers and sisters." तुम्हें तो मेरे भाइयों बहनों पति पत्नी माता पिता सबसे तुम्हें नफरत करनी पड़ेगी और तुम्हारे खुद के जीवन से भी नफरत करनी पड़ेगी। Yes. And Jesus knew to be a disciple means it was costly. तो प्रभु जानता था कि मेरा चेला बनना आसान नहीं है, बहुत ही कीमती चीज है। We like the Lord to do so many good things for us, and He does good things. हम लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत सारे अच्छा चीज करे और हमारे लिए करता भी है वो। But if we follow Him and walk in His footsteps, He'll do better things for us. लेकिन अगर हम लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे उसके पद चिन्हों पे, तो वो हमारे लिए और भी अच्छा चीजें कर सकता है। But there's a price to be paid. लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, The vast majority of people were not willing to pay the price. और ज्यादातर लोग ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। They wanted to do what they wanted to do, and plus also wanted to have the blessing of God. वो लोग प्रभु का आशीष चाहते थे, लेकिन उसी समय वही करना चाहते थे जो वो लोग की इच्छा के अनुसार था। And that's why they could not become disciples. इसलिए वो लोग कभी प्रभु के चेले नहीं बन पाए। So the Holy Spirit is given for people who want to be disciples of God. लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग प्रभु के चेले बनना चाहते हैं। The word of God is given for those who want to be disciples. प्रभु का वचन भी उन लोगों के लिए दी गई है जो प्रभु के चेले बनना चाहते हैं। If I don't want to be a disciple of Jesus, I'll find the word of God as a very boring book. अगर मैं प्रभु का चेला नहीं बनना चाहता हूँ तो मुझे प्रभु के वचन में कोई दिलचस्पी नहीं मिलेगी, And there is no need for me to be filled with the Holy Spirit at all. और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत भी नहीं है फिर, Because the Holy Spirit wants me make me holy like Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा चाहती है कि मैं प्रभु के जैसे पवित्र बनूं। He wants me to be transformed into the character of Jesus. वो चाहता है कि मेरे अंदर एक परिवर्तन आए और मैं प्रभु यीशु के जैसे बनूं। And character takes time. और ये चरित्र को आने के लिए समय लगता It है, takes suffering. बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। If anything, in this world also, if we want to become something, you will have to go through a lot of hardship and trouble to achieve something. इस दुनिया में भी ऐसी है, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो कई सारे मुश्किलों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। We know of Sachin Tendulkar. हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं। We know how he's become one of the highest, very good batsmen and highest score he has done. हम लोग जानते हैं कि उसने इतना सब सफलता पाया है क्रिकेट में, But how much of practice he has done since he was a child. लेकिन कितना उसने प्रैक्टिस किया है, कितना मेहनत किया है। Daily practice, same thing over and over, batting, the technique, over and over again. एक ही चीज रोज रोज मेहनत करके प्रैक्टिस कर करके वो इतना अच्छा बना है। And then we only see the records and we see him hitting sixes and fours, but then behind that there was a lot of trouble that he took. हम लोग बस उसे टीवी पे देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं खेलते हुए, छक्के लगाते हुए, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उसने अंदर ही अंदर कितना मेहनत किया है। Likewise, it is our own life. उसी तरीके से हमारे जीवन में भी The Lord will take us through many troubles and sufferings in our own life. प्रभु हमें अनेक परेशानियों के द्वारा लेके जाता है। If you want a ministry for the Lord, if you want to be a witness for the Lord will take you through a lot of troubles. अगर तुम प्रभु के सेवक बनने चाहते हो तो प्रभु तुम्हें अनेक परेशानियों के द्वारा लेके जाता है। And these troubles are not, their trials are not very comfortable for us. और जब ये परेशानी में हम लोग रहते हैं तो हमें इतना सुख नहीं मिलता, But the end result is very good. लेकिन उसके अंत में अच्छा ही होता है। End result is very good. जो अंत में जो चीज आता है वो अच्छा ही रहता है। See, you want to become a doctor in the hospital. अगर तुम्हें एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना है, Sometimes you have to work 18-19 hours a day continuously. कभी कभी एक दिन में 18-19 घंटे भी काम करने पड़ते You हैं। cannot take your own lunch break or dinner breaks. You have to eat sometimes at 2 o'clock in the night. तुम अपने समय में खाना पीना नहीं कर सकते, कभी कभी रात के 2 बजे भी खाना खाना पड़ता है। And people who sometimes who join, they say, "Oh dear, why I took this job? Why I took this course?" इसलिए कई लोग जो शुरुआत में आते हैं ये कोर्स में, लोग सोचते हैं कि मैंने क्यों आया ये फील्ड में, But we encourage them, you just stick out. 6 months, 8 months, then you will start liking it. लेकिन हम लोग उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, बस तुम डटे रहो, थोड़े 6-8 महीने गुजरने दो, फिर तुम इसकी आदत तुम्हें पड़ जाएगा। And because they stick on to it, they really they are very happy. क्योंकि वो लोग इस पर डटे रहते हैं तो अंत में वो लोग खुश रहते हैं। Their hard work is required. तो मेहनत लगता है, Lot of firings they get. बहुत उन लोगों को डांट भी पड़ती है, Lot of insults. बहुत लोग उन्हें इंसल्ट भी करते हैं, Lot of mistakes they make. बहुत गलतियां भी करते हैं, But then through hardships they learn the right way. लेकिन यही सब परेशानियों के द्वारा वो लोग सही करना सीखते हैं। And it's no different from our Christian life. तो मसीह जीवन भी कुछ अलग नहीं है। See, Christian life, there was one incident I heard when Billy Graham telling about a person who went to the army. तो एक कहानी सुनी थी मैंने ब्रदर बिली ग्राहम से। एक व्यक्ति था जो मिलिट्री ज्वाइन की थी उसने, Young man. युवक था, And he became very unhappy after he joined. और एक बार उसने ज्वाइन किया, वो बहुत ही खुश नहीं था वो, And he said, "You know how they treat us? और वो बोलता था, क्या तुम जानते हो किस तरीके से हमारे साथ सुलूक करते Get हैं up वो 4 लोग? o'clock in the morning, हम लोग को सुबह 4 बजे उठाते हैं, take a bath,
हम लोग को नहाने बोलते हैं, Then you have to go for drills. फिर जाके सब कसरत करनी पड़ती है, All sort of such a lot of work. सब कितना सारा काम करना पड़ता है। And they give you good food, but they make you do a lot of exercise. खाना अच्छा देते हैं, उसके बाद लेकिन कसरत भी उसी तरीके से कराते हैं। I'm saying it's so difficult. और वो बोल रहा था कि बहुत ही मुश्किल है। How does a person become a good soldier? तो एक व्यक्ति फिर कैसे एक अच्छा सोल्जर बन सकता है? Because he learn to become tough. क्योंकि वो ये सब के द्वारा वो फिर टफ बन जाता है, Then he can fight any battle. फिर वो कोई भी युद्ध लड़ सकता है। Saying why when the Lord takes us through situations and problems in our own life is to make us tough and will make us like Jesus Christ. इसलिए प्रभु भी हमें अनेक परेशानियों के द्वारा लेके जाता है ताकि हम लोग कड़क हो सके, उसकी फिर लड़ाई लड़ सके। We have to go through many sufferings. तो हमें कई सारी परेशानियों के द्वारा जाना है, But the Lord knows how much to give. He knows how much we can bear. लेकिन प्रभु जानता है कि हमारा क्षमता क्या है और वो क्षमता के ज्यादा हमें देता नहीं हो कोई भी परेशानी। When a person goes to army training, he wants to become a good soldier. The training is so good, but no harm. They see that no harm happens to the soldier. तो ये सारे लोग जो सेना में जाके भर्ती हो जाते हैं, वो लोग बहुत कठिनाई वो लोग उठाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी कठिनाई इतना नहीं होता कि वो लोग का पूरा हालत खराब हो जाए। Sometimes they run to the fire. कभी कभी वो लोग आग के द्वारा भी भागना पड़ता है, Sometimes they jump over this and jump and march straight into the water. कभी कभी उनको सीधा चलते चलते सीधा पानी में भी कूदना पड़ता है, And they have to obey the orders implicitly. और हर एक आदेश का उनको पालन करना पड़ता है। They will not give excuses. वो लोग कोई भी बहाना नहीं दे सकते। And because they do that, there is something that happens in their own life that they become fearless. तो क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं, उनके जीवन में कुछ होता है जिससे वो लोग एकदम सब डर निकल जाता है उनके मन से। And God takes each one of us in our own life as we desire to follow the Lord through a lot of hardships and troubles. इसलिए जो कोई भी है जो प्रभु का पीछा करना चाहता है, प्रभु उनको सब परेशानियों के द्वारा लेके जाता है। Troubles and trials are our lot in life. तो ये सारी कठिनाइयां हमारे जीवन का एक हिस्सा है, But they come and they go. लेकिन वो आते हैं और उसी तरीके से जाते भी हैं। But through those problems in our own life, God wants to teach us some lesson in our own life लेकिन वो सारे प्रॉब्लम के द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है and make us like Jesus Christ. और प्रभु यीशु की जैसे बनाना चाहता है। In 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस चैप्टर 5, पहला पत्रस चैप्टर 5 9 and 10 वाक्य 9 और 10, वाक्य 9 और 10 talks about our life as being a spiritual battle. तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा मसीह जीवन एक आत्मिक युद्ध है। 1 Peter chapter 5, 9 and 10. विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Bible verse 9 says, the same experience of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. तो बाइबल में लिखा है कि इस दुनिया में बाकी जो तुम्हारे भाई और बहनें हैं वो भी यही सारी कठिनाई के द्वारा गुजर रहे हैं। Sometimes we go through some problems and we think only I am going through all these problems. कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बस मैं अकेला ही सारी कठिनाई के द्वारा जा See, रहा the हूँ। problems that you go through are going through by all believers. नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई भी कठिनाई जिसका तुम सामना कर रहे हो, उसी का सामना दूसरे लोग भी कर रहे हैं। All saints who want to become like Jesus will go through hardships and troubles. जो कोई भी प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु यीशु के जैसे बनने चाहते हैं, सब लोग कठिनाई के द्वारा जा रहे हैं। And the end of the story is not that. It says, after you have suffered for a little while, और यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा समय तुम दुख उठाने के बाद, there's little while that we have to suffer. बस थोड़ा समय ही हमें दुख उठाना है। The God of all grace, अनुग्रह का प्रभु, God is the one who gives all help in every situation. हर एक परिस्थिति में प्रभु ही है जो हमें सब मदद देता है। The one who has called you to his eternal glory in Christ Jesus उसने जिसने तुम्हें बुलाया है प्रभु की महिमा की ओर, will confirm and settle and strengthen us. तुम्हें स्थिर बनाएगा, तुम्हें सिद्ध बनाएगा और तुम्हें बलवंत बनाएगा। See, the Lord is not interested in our earthly comfort basically. प्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग ये संसार में एक आराम का जीवन जिए। We are basically interested in our home, our job, our comfort, our travels and our pleasures. Basically we are automatically these thoughts come to our own minds. हम लोग हमेशा हमारी दिलचस्पी यही सब चीजों के ऊपर होती है कि हम लोग का जीवन एकदम आरामदायक रहे, सारी चीजों कोई चीज की कमी नहीं रहे। But the Lord wants us to become like Jesus. लेकिन प्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोग उसके जैसे बने। That is the eternal purpose. ये उसका अनंत का उद्देश्य है। We only see things on earthly points. लेकिन हम लोग सिर्फ ये संसार की संसार के जैसे सोचते हैं। That's why He orders all these things for ourselves, that our minds would be and heart would be focused on the Lord. इसलिए प्रभु अनुमति देता है कि ये सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आए ताकि हम लोग उसकी ओर ध्यान कर सकें। And it's only when troubles and trials come that we look to the Lord. और जब भी परेशानी आती है तभी हम लोग प्रभु की ओर गौर करते हैं। And God knows that. और प्रभु जानता है ये बात।
See, we never study our lessons, when just for the fun of it. हम लोग कभी भी पढ़ाई ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करते. Nobody likes to read grammar and just in our spare time or go through maths, sums and all that. कोई भी टाइम पास करने के लिए मैथ्स या कोई इंग्लिश व्यक्ति नहीं पढ़ता. We like to play games and cricket and try to do all sorts of other silly things, our hobbies. हम लोग को सब गेम वगैरह, टीवी देखना, यही सब करना अच्छा लगता है. But if you don't pass through all these things, we never get a proper degree or pass an exam. लेकिन अगर हम लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ सकते. So, but that's why we get lot of tests. इसलिए कई सारे परीक्षण आते हैं हमारे जीवन में. Unit test, midterm test, final exam, so many tests. यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट, फाइनल एग्जाम, ये सब आते हैं हमारे जीवन में. And the Lord also knows that by ourselves we will not progress unless we get tests. तो प्रभु भी ये बात जानता है कि खुद से हम लोग कभी प्रभु की ओर बढ़ेंगे नहीं जब तक हमारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं आती. And most of the tests are, God says, I'll give you a test today, surprise test, but you'll have to do unit tests. We give every day so many unit tests. तो प्रभु भी हमारे जीवन में हर रोज एक यूनिट टेस्ट लेके आता है, एक परीक्षण लेके आता है. And sometimes they're very difficult. और कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है. Why they're difficult? Because I have not to do what I want to do, but I have to do what somebody else has to do. That is God's will. और वो मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता जो मुझे करना है, मुझे वो करना पड़ेगा जो प्रभु चाहता है मैं करूं. We have to humble ourselves under God's mighty hand. तो उस समय हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे खुद को नम्र बनाना पड़ता We है. have to say, Lord, your hand is mighty. I don't know what to do in this situation, but I will humble myself. हमें बोलना पड़ता है कि प्रभु मैं नहीं जानता इस समय क्या करना है, लेकिन आप इस समय आप नियंत्रण में हो तो आप करो जो करना है. The end result is that God wants to make us humble and meek and humble in spirit. तो अंत में प्रभु का उद्देश्य यह है कि हम लोग अपने आत्मा में दीन और नम्र बने, That He can bless us. क्योंकि उसके बाद वो हमें आशीष दे सकता है. Because that is what Jesus was. Jesus had a meek and a quiet spirit. उसी तरीके से प्रभु यीशु के पास भी एक दीन और एक नम्र आत्मा था. Bible says it is precious in the eyes of God. बाइबल में लिखा है कि ऐसी आत्मा प्रभु के नजरों में कीमती है. By not automatically we don't get a meek and a quiet spirit. खुद से हमारे पास ऐसी आत्मा नहीं आती. We are very bossy. We like to do what we like to do and try to argue, fight and do what we like to do every day. हम लोग खुद से बहुत ही जिद्दी होते हैं, वही चीज करना चाहते हैं जो हम लोग को करना है. And this is God's method. This is God's ways. लेकिन ये प्रभु का तरीका है. Not for me, but for you, but for all His children. सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए. And that's why He sends us through many difficulties and trials. और इसलिए वो हमें अनेक परिस्थितियों के द्वारा लेके जाता है. I had a situation when my boss was giving me a lot of work. एक मेरे साथ हुआ था घटना मेरे ऑफिस में. मेरे बॉस ने मुझे बहुत काम दिया था. And I was thinking it is very unjust. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बराबर नहीं है, ये सही नहीं है. But what to do if he is a boss? You have to listen to orders. लेकिन मैं क्या कर सकता था, बॉस है तो सुनना ही पड़ेगा. So it is extra work, so the extra time. तो ज्यादा काम था तो ज्यादा समय भी बिताना पड़ा वहाँ पर. And the people in the world, they know how to harass people by giving them more and more work. और इस दुनिया में लोग जानते हैं कैसे दूसरों को परेशान करना है, उसको और काम दो. The Lord told me just keep quiet and do it. तो प्रभु ने मुझे उस समय कहा बस तुम अपना मुंह बंद रखो और काम करो. And we'd gone for many months. और ऐसा कई महीने चले. And I said it is most unjust when other people junior to me are not given the job. I am being a senior given the same job, that job to do. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं है, मेरे नीचे जो लोग हैं ऐसा काम कर रहे हैं, यही काम मुझे क्यों दे रहे हैं. Just last week, the boss above his boss came and suddenly saw, "Arey, this thing is not. Why his name is put over here for do this work?" लेकिन पिछले हफ्ते मेरे बॉस के बॉस भी आए, उन्होंने देखा कि ये काम के आगे तुम्हारा नाम क्यों है. This is the most improper. ये बिल्कुल सही नहीं है. See, that thing is rectified. ये ठीक कर दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए. By the time I had got used to doing this extra work, लेकिन तभी तक मुझे आदत पड़ गया था ये ज्यादा काम करने का. it came as a pleasant surprise. तो ये एक अच्छा चीज हो गया मेरे लिए. So this time this verse came that God, our suffering for little time will be there. तो उस समय मुझे इस वचन का ध्यान आया कि ये जो कोई भी तुम दुख उठा रहे हो थोड़े समय के लिए होता है. Many times the suffering has to be then learned to we have a meek and a quiet spirit. इसलिए जब कभी भी हम लोग दुख उठाते रहते हैं उस समय हमें सीखना है एक नम्र और दीन आत्मा रखने का. Don't get into arguments and fights and everything. झगड़ा वगड़ा मत पड़ो. And because if we do that, then what happens? We will stop sinning. क्योंकि अगर हम लोग झगड़े वगड़े में नहीं पड़ेंगे फिर हम लोग पाप नहीं करेंगे. See, our will have to, the main problem why we sin is because I want to do what I want to do. हम लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वही करना है जो हमें अच्छा लगता है. All the sin and the fights and the quarrels happen in our homes, in the church and wherever in the office is because everybody wants to do their own will. सब पाप सब झगड़ा घर में कलेशा में इसलिए होता है क्योंकि सब लोग वही करना चाहते हैं जो उन्हें करना है. They are not willing to listen. वो लोग किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते. Jesus said when people try to give extra work, somebody tries to make you 1 mile, go 2 miles. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर किसी ने तुम्हें बोला है मेरे साथ 1 मील चलो, 1 किलोमीटर चलो, उसके बाद 2 किलोमीटर चलो. Somebody wants to take your things away, your shirt away, let him take it, take another shirt. कोई तुम्हारा अगर कपड़ा लेना चाहता है तो उसे लेने दो. So then he said, but there's a God above who watches all these things. क्योंकि तू ऊपर परमेश्वर बैठा है जो ये सब चीज देख रहा है.
you have faith in the living God, God will take you through and God will establish you. अगर तुम विश्वास रखते हो जीवित परमेश्वर में तो वो तुम्हारा ख्याल रख देगा। He'll take away our desire for the earthly things and give us a better desire for heavenly things. संसार की चीजों की ओर जो तुम्हारे अंदर इच्छा है वो निकाल देगा तुम्हारे मन से। And as we heard, we say we'll have a love and compassion for people who do this evil. और जैसे हमने आज सुना दूसरों की ओर फिर एक प्रेम रहेगा, एक करुणा रहेगा हमारे मन में। Jesus never went into fights with their people. प्रभु यीशु कभी भी किसी के झगड़े में नहीं पड़ते थे। He did what God wanted him to do. वो बस वही करते थे जो प्रभु चाहते थे वो करे। That is why he's become an example. इसलिए वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। There is this verse in 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस में एक वचन है, पहला पत्रस चैप्टर 4 verse 1. वाक्य 1। पहला पत्रस चैप्टर 4 वाक्य 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। The one who has suffered in his flesh means I say no to my will and say yes to God's will, I will cease from sin. तो जब मैं अपनी इच्छा को ना बोलूंगा, प्रभु की इच्छा को हाँ बोलूंगा, उस समय मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। How to stop sinning? कैसे पाप करना बंद करना है? Don't do your will. खुद की इच्छा मत करो। Why is there so many fights everywhere? सब जगह झगड़ा क्यों होता है? Because somebody wants to do this, husband wants to do this, wife wants to do that. क्योंकि पति एक चीज करना चाहता है लेकिन पत्नी दूसरी चीज करना चाहती The है। Lord said, just give it up. इसलिए प्रभु कहता है कि ये सब चीज बंद करो। And then I will not sin. और उसके बाद मैं पाप नहीं करूंगा। Otherwise, if I keep on doing my own will, I will keep on sinning as a believer. लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा करता रहूंगा तो विश्वासी होने के बावजूद भी मैं पाप में गिरते रहूंगा। I will keep revenge in my heart. मैं अपने मन में दुश्मनी रखूंगा, I'll keep hatred. कठोरता रखूंगा, And we will never stop sinning. और मैं कभी भी फिर पाप करना बंद नहीं करूंगा। That's why, as believers, we will keep on sinning if I want to do my own will. इसलिए विश्वासी होने के बावजूद मैं पाप करते रहूंगा जब तक मैं वही चीज करूंगा जो मुझे करना है। See, God has given each one of us our own will. तो प्रभु ने हम सबको एक खुद की इच्छा दी है, And if you keep on doing your own will, you will sin. और अगर तुम खुद की इच्छा ही करते रहोगे तो तुम पाप करते रहोगे। But if I say, Lord Jesus, I don't know what to do in this situation. I want to do your will. Please, I submit myself to you. लेकिन मैं अगर कहूंगा कि प्रभु यीशु ये परिस्थिति में मुझे वो नहीं करना है जो मुझे करना है, लेकिन वो करना है जो आपको करना है, तो मैं पाप नहीं करूंगा। He said, humble yourselves under the mighty hand of God. इसलिए बाइबल कहता है कि प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे खुद को नम्र बनाओ। Mighty hand of God allows people, circumstances, situations to come across your life. Say, Lord, you have sent it. I thank you for that. प्रभु का बलवंत हाथ हमारे जीवन में अनेक लोगों को भेजता है, परिस्थितियों को भेजता है, तो हमें कहना है कि प्रभु ये आपने भेजा है, मैं इसे स्वीकारता हूँ। Then I'll become a spiritual man. तब मैं आत्मिक बनूंगा। Jesus said, this was Jesus' aim and motto in this world. Hebrews chapter 10 verse 8 and 9. इब्रानी चैप्टर 10 में जाएंगे, वाक्य 8 और 9। इब्रानी चैप्टर 10 वाक्य 8 और 9। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यदि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, तो यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। Yeah. Jesus in his body, in his life, he never did his own will. प्रभु ने कभी भी अपने जीवन में वो नहीं किया जो वो करना चाहते थे। He did the Father's will. उन्होंने सिर्फ वही किया जो प्रभु की इच्छा अनुसार था। And that's why that is the meaning of taking up our cross daily. और यही है मतलब अपना क्रूस उठाने का हर रोज। It is not my will, but God's will be done in my life. कि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा करूँ अपने जीवन में। Sometimes God sends some authority above you in your own life, who overrules the authority. And some person above authority above you overrules the authority. तो कभी-कभी प्रभु ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजता है जो हमारे पास जो अगुवाई करने का जो क्षमता रहता है उसके ऊपर वो रहता है। Be quiet. तो उस समय तुम शांत हो जाओ। Be humble yourself. खुद को नम्र बनाओ। God is the one who is in control of the situation. क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु का नियंत्रण है। We have to experience the mighty hand of God in all our situations of life. तो ये सारी परिस्थितियों में हमें प्रभु का बलवंत हाथ को जांचना है, जानना है। That is why the Lord says we must always. Jesus went the same way. प्रभु यीशु भी यही रास्ते पे वो चल रहे थे। That is the only way to follow the Lord. वो एक ही रास्ता है जिससे हम लोग प्रभु का पीछा कर सकते हैं। And these are the people who get the best from God. और ऐसे ही वो व्यक्ति रहते हैं जो प्रभु का सबसे अच्छा आशीष पाते हैं।
We tell when the waters of baptism, Lord Jesus, I want to follow you. जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं हम लोग बोलते हैं कि प्रभु आपका पीछा हमें करना है। No, none go with me, still I will follow you. भले मेरे साथ कोई भी नहीं चले मैं आपके पीछे जाऊंगा। Nobody follows you, Lord, I will follow you. भले आपका पीछा कोई नहीं करे लेकिन आपका पीछा मैं करूंगा। The world behind me, the cross before me. दुनिया मेरे पीछे, आपका क्रूस मेरे सामने। Yes, Lord, I will always look at Jesus. मैं हमेशा प्रभु यीशु की ओर देखूंगा। Never look at other human beings, any elders or pastors, anybody. But Jesus should be our always example. कभी भी किसी की ओर नहीं देखूंगा, सिर्फ प्रभु यीशु की ओर देखूंगा क्योंकि वो मेरा उदाहरण है। And the Holy Spirit will tell you, this is what Jesus would do. और उस समय पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि ये स्थिति में प्रभु यीशु ये करता था। He is a personal tutor. वो तुम्हारा आपसी शिक्षक है। Personally, He'll tell you, this situation, do that. ये हर एक स्थिति में तुम्हें बताएगा तुम्हें ये करना है। And He will lead you and guide you into all the truth. फिर तुम्हें मार्गदर्शन देगा और हर एक सच्चाई में तुम्हें लेकर जाएगा। Then the Bible becomes very interesting. फिर बाइबल एकदम दिलचस्प पिता बन जाएगी हमारी। We heard yesterday we were saying that who is the one who wrote the Bible? हमने कल सुना था कि किसने लिखा है बाइबल को? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। 66 books are there, but so many authors wrote it, but the Holy Spirit inspired it. 66 बुक्स है इसमें 40 लोगों ने लिखा है लेकिन उसका सबसे बड़ा लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। So many centuries. इतने सारे सदियों के द्वारा। So then the Holy Spirit, if you want to understand, the Holy Spirit will come to you and show you how to read it, and give you understanding about it. इसलिए अगर तुम्हें समझना है तो पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें ज्ञान देगा कैसे तुम इसे समझ पाओ। That's why we are asked, Lord, I want to be like you. I'm in only KG class now. Please take me from first standard, second standard, third standard, the Psalms. But then, Lord, I want to be like you and want to be come into the image of Jesus Christ. इसलिए बोलना है कि प्रभु यीशु मुझे आपके जैसा बनना है। मैं बहुत ही छोटा कक्षा में हूँ अपने मसीह जीवन में, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर और रोज आपकी और आपकी जैसा और बनते जाना है। That is the primary ministry of the Holy Spirit. ये सबसे बड़ा उद्देश्य का काम है, कार्य है पवित्र आत्मा का। To show the glory of Jesus. कि वो हमें प्रभु यीशु का महिमा दिखा पाए। Then I will say, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. तब मैं बोल पाऊंगा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सिर्फ क्रूस की ओर बढ़ूंगा। I want to live and walk as Jesus lived. मुझे जीना है और चलना है प्रभु यीशु के जैसे। Make this your ambition, each brothers and sisters. ये तुम्हारा इच्छा और तुम्हारा उद्देश्य बनाओ। The Christian life, to be a disciple, is the best profession to take up in this world. मसीह जीवन, प्रभु का चेला बनना सबसे बेहतर चीज है इस दुनिया में। There's no other profession better than that. उससे बेहतर काम को है ही नहीं इस दुनिया में। For eternity, we'll have no regrets at all. अनंत जीवन में हम लोग कभी भी मन में कोई ऐसा ये नहीं रहेगा मैंने कुछ खोया है। And we will say, then we will look back on our life and say, I wonder why I ran after all these earthly glories. जब हम लोग अनंत जीवन में पहुंचेंगे हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि ये दुनिया की चीजों के पीछे मैं क्यों भागता था। Soon I have to leave my this earthly body and leave this world. बहुत जल्दी मुझे ये शरीर ये दुनिया सब छोड़ के जाना है। And one day where will I go? और मैं एक दिन कहाँ पर जाऊंगा? My whole being will have to go back to God. मेरा पूरा जो अस्तित्व है वो प्रभु के पास जाएगा। To give an account to God in my own life. और प्रभु को फिर हिसाब देना पड़ेगा मेरे जीवन का। Then the Lord will tell you, well done, the good and faithful servant. तो उस समय प्रभु उससे कहेगा कि तुमने अच्छा काम किया है मेरे ईमानदार नौकर। In all the hardships of life, you were faithful to me. जीवन के हर एक परेशानी के द्वारा तुम हमेशा मेरी ओर श्रद्धालु थे। You tried your very best. तुमने कोशिश किया तुम्हारा। Enter into the joy of the Lord. अभी आओ मेरे आनंद में भाग लो। But if you just play the fool, what the Lord said, there will be such a sorrow in our own heart. लेकिन अगर तुम फालतूगिरी करोगे तो अंत के जीवन में तुम्हें बहुत दुख होगा। Because we are afraid to displease people. क्योंकि हम लोग चाहते नहीं कि हम लोग दूसरे लोगों को निराश करें। And to love our own lives. और हम लोग खुद के जीवन से ही प्रेम करते हैं। As we heard about the rich man who lived a life of lovely luxury. जिसे हमने वो अमीर आदमी का कहानी सुना कि वो एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसमें उसको सब ऐशो आराम थे। He didn't want to give up his own food and clothing, and that he didn't even care for the poor at all. वो ये सब मौज मस्ती को छोड़ना नहीं चाहता था, उसको गरीबों की और कुछ दया भी नहीं थी। As a song which Brother Zach has written, if all my life revolves around me and thoughts of mine own family. इसलिए एक गीत है जो ब्रदर जैक ने लिखा है कि अगर पूरा समय मेरा जितना भी सोच विचार है बस मेरे जिंदगी की और मेरे परिवार की जिंदगी की ओर घूमता रहता है। Lord, give me light that I may see. तो प्रभु मुझे ज्ञान दे इसके बारे में, मुझे ज्योति दे ताकि मैं जान पाऊँ इसके बारे में। Lord, if I'm living selfishly. प्रभु अगर मैं स्वार्थी जीवन जी रहा हूँ। God has called us not to live selfishly but to live for Jesus. तो प्रभु चाहता है कि हम लोग स्वार्थी जीवन नहीं जिए लेकिन प्रभु के लिए जिए। He's died for you so that you may live for Jesus. वो तुम्हारे लिए मरा है ताकि तुम लोग उसके लिए जी पाओ। Don't live for yourself. You live for yourself, you'll follow the devil. तुम लोग खुद के लिए मत जाओ, अगर तुम लोग खुद के लिए जियोगे तो तुम शैतान का पीछा करोगे। You live such a bad life, you live a miserable life, and you will die like that. तो एकदम खराब और फालतू जीवन जियोगे और उससे वैसे ही मरोगे। The Lord, please save us. God, the Holy Spirit has come to save us. इसलिए बोलो कि प्रभु मुझे बचाओ और पवित्र आत्मा आया है तुम्हें बचाने के लिए। He is a helper. वो तुम्हारे मदद करने के लिए आया है। Come to God. प्रभु के पास आओ।
surely He will save us. और वो तुम्हें जरूर बचाएगा। He is a very present help in the time of trouble. वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है। The Bible says, draw near to God and He will draw near to you. बाइबल में लिखा है कि प्रभु के निकट जाओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। Lord, I cannot understand what your will is, but Lord, show me, I will do it. बोलो कि प्रभु मैं जानता नहीं हूँ कि आपका इच्छा क्या है, लेकिन मुझे दिखाओ और मैं वो करूंगा। One thing is, one word, many times in my own problems in life, God taught me one thing, you don't know anything, any problem, just humble yourself. प्रभु ने एक चीज मुझे सिखाया है कि कोई भी मैं परिस्थिति में रहूं, बस शांत रहो और मुझ पे भरोसा रखो। Just नम्र हो जाओ, just humble yourself. तो अपने आप को नम्र बना दो उस समय। First stop is